So, good morning, dear students. Now, today under the second unit, we are studying the shear force and bending moment. We are learning how to draw the shear force and bending moment diagram for a different kind of beam if it's subjected to the different type of loading. So, let's see that one important terminology, that is the point of contraflexor. In the last class, we have know about the what is the shear force, what is the bending moment, what is this moment, and what is the shear force diagram, what is the bending moment diagram. We all are discussed in last class. So I I can say you might be remember all the things. So now the one term is their point of contraflexor, and it is also called inflection point. And what is this? It is the point on the bending moment diagram where the bending moment change its sign from positive to negative or vice versa. It means if you are going to draw a bending moment diagram, it's if it is change its sign from positive to negative or negative to positive, so that point is called point of contraflexor or inflection point. So at the point of contraflexor, bending moment zero. It must be zero because at that point the bending moment itself change its sign. So if it is changing from positive negative or negative to positive, so that the point of contraflexor bending moment must be zero. Zero at means the bending equation at that point is so. That let's move ahead. So this is some common relation between load, shear, force, and bending moment. Okay, so this is a common relation between the all of uh, 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 the load, shear force, and bending moment. So if a simply supported beam subjected to point load at its midpoint, so its shear force diagram will be like this, and it change its sign itself. Therefore also change its sign where the load is applied, it is at a midpoint. So if is this kind of situation is there, so definitely you will get the shear force are linear in nature like this. And if the loading is such kind, so you will get the bending moment like this, means a triangular in shape, and where the load is acting there is a maximum bending moment. Okay, and next to if the same beam are subjected to a uniformly distributed load, so then what happens? Then your shear force is linear. You can see that this is a linear variation, and the mid it is the shear force is the zero. So this is the standard relationship between the shear force, bending moment, and load. And for the parabola, you know that this is a shape of parabola. So in case if it is subjected to uniformly distributed load, so the bending moment diagram will be a parabola. And similarly, if third case, if the uniformly bearing load is applied on a simply supported beam, so in this case, what that a shear force gives a parabola, and it's a bending moment diagram gives a cubic. This is the cubic, and it looks like a parabola. So you are now able to see a relation between them. You can see that. So in first case, the shear force is a linear straight line, and it's changed its sign itself. Sometimes it's changed, sometimes it's not changing also. But if the position of load is somewhere else, and the moment is linear. Now, what happened in the second case? If it's UDL, so this linear move towards, so its shear force become linear. Shear force become linear, and moment parabola.
now this parabola, this in case of UVL, the shear force become parabola and the bending moment become the cubic. So आप ये कोशिश करना, याद हो जाएगा, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे तो you will be remember all of it. And in the case of, you can see, it's simply supported beam. If there is acting a moment only, एक moment लगा हुआ है, then what? So the moment does not show any effect on the shear force diagram. देख लीजिए, आपका मोमेंट का शेयर फोर्स डायग्राम में कोई फर्क नहीं पड़ा, वो एक लीनियर ही है, ओके, बट इट इज अफेक्टिंग टू द बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. सो शेयर फोर्स का रिलेशन सीधे बेंडिंग मोमेंट, सॉरी मोमेंट का रिलेशन सीधे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पे पड़ रहा है, शेयर फोर्स पे कुछ असर नहीं पड़ रहा है, इट्स अनअफेक्टेड. ठीक है, समझ में आ रहा होगा. Then, so where is the moment is acting? So definitely it is gone up and down with the value of this. You can see this. It is linear, but sudden where the moment is acting, it's go down. Okay. Then, if it is a cantilever beam subjected to a point load at the end, so its shear force will be a linear, like this. Constant, not linear, it's constant, state constant, and its a bending moment a linear. And if it is subjected to cantilever, so UDL, uniformly distributed load, so its shear force linear and its bending moment, or that is maybe that will be a parabolic. So these are the relation between, common relation between the load, shear force, bending moment. So this is a problem. ये एक प्रॉब्लम है जिसको हमको सॉल्व करना है. So let's read out the statement of the problem. Draw the shear force and bending moment diagram for double side overhanging. This is a overhanging beam subjected to a load as shown in the figure. Locate point of counterflexure if any. If there is any point of counterflexure, you find where it is. Where is it? The distance of point of counterflexure. This is about the question. So my dear students, you remember that whenever the beam is overhanging, you will definitely get a point of counterflexure. So because this is an overhanging beam. So the first step, you all know that in the first step, we have to be calculate the reaction at A, reaction at B. So पहले for that आप क्या करोगे? बहुत सिंपल है, ये देखिए, कैलकुलेशन एंड रिएक्शन. तो सबसे पहले आप क्या कर लो, आर ए प्लस आर बी, या आप ऐसा लिख से, दोनों बराबर होंगे डेफिनेटली. ऊपर के सारे लोड को हुक कौन शेयर कर रहे हैं? ये दोनों. तो ऐसे लिख सकते हो आर ए इक्वल टू आर बी, और क्योंकि बीम सिमेट्रिक है ना, इसलिए ये देख लीजिए. अगर ये सिमेट्रिक नहीं होता तो ये ऐसा नहीं लिख सकते थे, फिर हमको लिखना था आर ए प्लस आर बी इक्वल टू 1/2. इसलिए मैं लिख पाया क्योंकि बीम इस एक्सिस के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिक है. देख लो, एक 5 का इधर लगा है तो 5 का यहाँ लगा, 10 का बीच में लगा, ये बराबर है, इसलिए ऐसा हो पाया. नहीं तो आप सिंपली लिख सकते तो आर ए प्लस आर बी इक्वल टू ऊपर से लगने वाले लोड. तो ऊपर से लगने वाले लोड कौन कौन से हैं? ये 5 है, ये 5 है, देख लो आप, ये 5, ये 5, ये 10. तो 5, 10, 5, 5, 10, 5. 2 है UDL, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड. कितनी लेंथ पे है? 3, 3, 6. तो 2 × 6. सो आप ये 32 आ रहा होगा, डिवाइड बाई 1/2. सो 16 किलो न्यूटन. देन आर ए एंड आर बी इज हियर. ये देखो, आप देख लो, आर ए आर बी इज 16 किलो न्यूटन. ये आ गया आपका आर ए आर बी. सो नेक्स्ट 1/2 क्यों सर? 1/2 सर, क्योंकि बीम इज सिमेट्रिक है, बिल्कुल इस एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक है, इसलिए डायरेक्टली यू कैन से द 1/2. इसलिए ओके सर. बीम सिमेट्रिक है. आप देख लो, यहाँ लाइन खींच लो, दोनों साइड बराबर लोड लग रहे हैं. अगर ये 10 का होता है, ये 15 का होता तो सिमेट्रिक नहीं होती. लोड भी सिमेट्रिक है ना, देख लो, इसलिए ऐसा हुआ. अदरवाइज फिर आपको
पहले वाली मेथड अप्लाई करती जो आपको पहले से पता है। चलिए ठीक है। नेक्स्ट, now we will find the shear force at the where the load is at। चलिए अपन चलते हैं। सो सिंपल मेथड हमने कल देखा था। डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, जहां जहां पर भी लोड है या सपोर्ट है वहां दोनों साइड आपको ऐसी दो वर्टिकल्स लाइन ड्रॉ करनी है। तो पहली वाली 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 पहला स्टेप। and RA and RB you know that, then start to find out the shear force। so here shear force at 0 0 must be 0। तो F 0 0 यहाँ पर shear force कितना हो गया 0 होगा, और यहाँ पर shear force कितना हो जाएगा 5। एंड साइन क्या होगा, अपन एक छोटा सा वहीं बना देते हैं, यहाँ बना देते हैं। दिस इज अ बीम, if section is here, x section is here, so this one is positive, this negative, this positive and this negative, this is sign convention for the shear force। ये आपको पता है। चलिए ये देखिए, तो यहाँ पर तो 0 है, मिल गया 0, मतलब वो 0 से स्टार्ट होगा। फिर F11 आइए, F11 में आए तो मतलब राइट साइड की बीम को भूल गए, तो उस सेक्शन में यहाँ तक कौन सा लोड आया 5 किलो न्यूटन का, तो 5 किलो न्यूटन ले लिया। इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से इसके ये लेफ्ट पे है, तो लेफ्ट पे ऊपर से क्या होता है माइनस साइन, ये माइनस साइन लगा दिया तुमने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन आप 1 2 2 पे आए तो आप लिखा आप F22 2 पे आ गए। 2 और 1 1 के बीच में कोई अलग से लोड तो लगा ही नहीं है, मतलब जो 1 1 पे लग रहा वही ये फील करेगा। तो 1 1 पे कितना लग रहा था -5 किलो न्यूटन, तो F22 पे भी -5 किलो न्यूटन। देन 3 3 पे आते हैं, लोकेशन यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टार्ट मैंने बोला था जहाँ स्टार्ट होगा एंड होगा वहां पर भी आपको रखना पड़ेगा। तो जब आप F22 यहाँ पर आ गया F इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट में आपको यहाँ आते हैं, देखिए -5 पहले का हम लेते हैं, देखिए जरा -5 पहले का है और प्लस, अरे यार बच्चे बीच में, ओके चलिए यहाँ आते हैं। तो आप ये देखिए इस जब 3 3 की बात करेंगे तो और कौन से लोड आ गया, तो अपने को ये आ गया 2 किलो न्यूटन का, ये 2 किलो न्यूटन का ये वाला लोड आ गया, ठीक है। और साथ में ये वाला भी आ गया ना इसके अंदर, ये रिएक्शन वाला, देखो जरा यहाँ पर ये इस पॉइंट पे, जस्ट इस पॉइंट पे तो कितने लोड आ गए, एक 5 ये वाला पहले का और 16, तो आप 16 इस सेक्शन के 16 किधर है, नीचे से ऊपर की तरफ, ये देखिए तो ये प्लस, तो यहाँ 16 आप प्लस कर दिए तो 11 हो गया। तो यहाँ 3 3 पे 11 किलो न्यूटन का लोड हो गया, ठीक है। अब F44 हम अब निकालेंगे F44, ठीक है। ये देखिए आते हैं F44 में आते हैं। F44 में जैसे आया तो कितने लोड आ जाएंगे बेटा, ये वाला 5, ये वाला 16, ये वाला आया ना, देखो जरा 5 16 और ये, तो अपन को इतना तामझाम करने की जरूरत है। नेक्स्ट जो पहले था 11 उसको ले लो एज इट इज, 11 उठा लिया, ठीक है, 11 ले लिया। फिर अब कितना आया है देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक के ये वाला यहाँ का आइए, तो यहाँ का डिस्टेंस हो गया आपको 2 है, और ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक हमने 3 ले लिया, ये वाली, ये देखिए जरा ये 3, तो 2 × 3 तो कितना हो गया 5, इसको कैलकुलेट करें 6 और 6 11 - 6, तो ये आ जाएगा आपका 5 किलो न्यूटन प्लस में। नाउ अब आ जाइए आप कहाँ, इस लोकेशन पे, नई वाली लोकेशन पे, यहाँ पर आइए 5 5 पे आ जाइए। तो 5 5 लोकेशन में पहले +5 था, ठीक है। अब एक्स्ट्रा क्या आया उसमें, ये 10 आ गया, 10 और आ गया ना उसमें, तो आप ट्रेन को दे, ट्रेन क्या है, इस सेक्शन को लेंगे तो ये इस सेक्शन से ऊपर से नीचे की तरफ, तो इस सेक्शन से ऊपर के नीचे की तरफ माइनस साइन, तो आपको ये माइनस साइन के साथ तो -5 हो गया। देन सेक्शन अब आ जाइए 6 सेक्शन में आ गया, तो पहले आया -5 को एज इट इज आप ले लीजिए, और कोई लोड यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 6 6 की जब बात करेंगे, यहाँ देखिए
इस 6 में, तो आपको एक तो ये यहाँ से माइनस साइन आ गया, ठीक है, ये वाला, और इस ये देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है कितनी, 2 तो लग ही रहा है, तो ये वाले 3, तो 2 इंटू 3 6, तो ये आ गया यहाँ से लेके यहाँ तक का, तो 2 इंटू 6 तो 11 किलो न्यूटन का आ गया। ग्रेट। अब 7 में आ जाइए, जैसे आप 7 में आइए तो ये आरबी भी आ जाएगा पिक्चर में, ठीक है, ये आरबी भी फिल्म में आ गया आपके। सो पहले कितना आया था -11 एंड आरबी इसके रिस्पेक्ट में क्या है, देखो जरा इस सेक्शन आप कहाँ हो, 7 पे हो, तो 7 के रिस्पेक्ट में प्लस आ रहा है, तो आरबी प्लस हो जाएगा 16, ये देखो, तो ये 5 किलो न्यूटन। फिर 8 आइए, 8 में क्या, वही जो पहले था 5 किलो न्यूटन, और यहाँ आ जाइए 9 में आइए, तो पहले का 5 तो आप ले होगे, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ये 5 नेगेटिव हो गया तो माइनस हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। मतलब ये एकदम एंड ऑफ द बीम पे जो इसका लोड होगा, जो एक्सपीरियंस करेगा, वो मस्ट बी शेयर फोर्स की वैल्यू 0 होगी। तो आप देख भी सकते हो, देखो आगे सर। बोलो। सर जो पहले का लोड था वो -5 था ना सर जी, F99 में सर। +5 ही है, माइनस कहाँ से हो गया? अभी भाई ये कहाँ हम पहुंच गए, हम 7 पोजीशन पे हैं, तो 6 ओके समझ सर। 6 वाला एज इट इज आ जाएगा, उससे पहले का कैलकुलेशन एज इट इज वैल्यू आ जाती है, और नेक्स्ट जो भी लोड आता है वो प्लस माइनस देख के उसको प्लस माइनस कर देते हैं, ठीक है। ओके सर, आगे सर। ओके सर। नाउ अब हम उसको वही एज इट इज सारी वैल्यू अब हम यहाँ पर प्लॉट करते हैं। तो 0 पे कितना था, यहाँ 0 है, 0 पे 0 था, फिर 1 पे कहाँ था, 5 था, फिर कांस्टेंट यहाँ तक आया, फिर 5 था, फिर उसके बाद 11 बढ़ा था, फिर उसके बाद हमने यहाँ आया तो यहाँ कितना आ गया था, 5 +5 था, फिर यहाँ -5 था, तो ये ऐसे इंक्लाइन लाइन से जुड़ जाएगा, फिर यूं, फिर यहाँ 11 था, इसको अपन 11 इसको ऐसे जो कर देंगे, यहाँ 5 आया था, 5 और 5 ऐसे। तो ये आपका शेयर फोर्स डायग्राम, ये कुछ नहीं किया है, जो वैल्यूज मेरे पास थी ये वैल्यू देखो, 0 पे 0, 1 पे -1 पे कितना है -5, 2 पे भी -5 है, तो आप देख लो -5 दो जगह पे आ रहा है, यहाँ ये देखो -5 यहाँ -5 यहाँ, ये जो बीच की लाइन है ये रेफरेंस लाइन है, इसके ऊपर पॉजिटिव इसके नीचे नेगेटिव, तो यहाँ ये 0 एक्चुअली यार तुमको एक चीज समझो, ये दोनों जो पॉइंट्स हैं जब ड्रॉ करोगे तो ये एक साथ आ जाते हैं, ये जब ड्रॉ करते हैं, वैसे अभी देखने के लिए 0 से स्टार्ट हुआ, ये 0 है, अब इससे ये नीचे जाएगा तो ये 1 हो जाएगा, -5, फिर यहाँ से जाएगा 2, ये देख लो चाहे ये 2, और ऐसे 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 आपको ड्रॉ कर लेना है, तो ये हो जाएगा आपका शेयर फोर्स डायग्राम। ऐसे ही सॉल्व करते हैं इसको। लेट्स सी द बेंडिंग मोमेंट, ये तो बहुत आसान है, बेंडिंग मोमेंट निकालना मेरे हिसाब से शेयर फोर्स से भी आसान है, अगर आपको थोड़ा सा, अब अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करोगे, जिस पॉइंट पे निकालना है, हॉगिंग सैगिंग देखना है। अब देखो चालू हो जाओ, सी यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट, जहाँ पर लोड लग रहा है और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट 0 ही होगा, ये हमेशा हो गया है, आप लिख लो चाहे तो, बेंडिंग मोमेंट एट द फ्री एंड इज 0, ठीक है, 0 हो गया। तो ये सी पे और ई पे बेंडिंग मोमेंट 0। अब आते हैं ए पे, ए पे निकालने के लिए आप क्या करो, इधर के जितने भी लोड लग रहे हैं उसको कंसीडर करो, तो कितने लोड लग रहे हैं, सिर्फ 5 का ही तो लग रहा है, 5 का लग रहा है, तो 5 डिस्टेंस देख लो जरा इसकी कितनी, 2, तो 5 इंटू 2, और साइन देखो ये इस सेक्शन के नीचे की तरफ लेके जाएगा, ये लोड बीम को नीचे की तरफ लेके जाएगा, तो माइनस साइन, तो -10 किलो न्यूटन मीटर। सिमिलरली अब आइए डी पे आते हैं, इसके बाद डी पे आ जाओ, कोई दिक्कत है, आइए डी पे, डी पे आइए, तो डी पे आप इस साइड का भी ले सकते हो, राइट साइड का भी और लेफ्ट साइड का, तो बेटर ये कि भैया आप एक साइड से ही कर लो, भूल भाल बन जाना। तो यहाँ देखिए जरा, ये 5 की इस डी से डिस्टेंस कितनी है, कोई बता सकता है, 5 की डी से डिस्टेंस, इस 5 की इस डी से डिस्टेंस, इस वाले से 5, तो इससे हो गया ये 5 इंटू 5, और दिस 5 इज ट्राइंग टू बी मूव डाउनवर्ड, डाउनवर्ड ले जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस, ये देखिए माइनस। अब इसमें आ जाएंगे आर ए पे, आर ए कितना है
16 किलो न्यूटन और डी की डिस्टेंस इसके 3 है, तो पहले 16 इंटू 3 कर दो आप, फिर ये ऊपर लेके जाएगा इसको, ये नीचे से लग रहा है ना, तो ये बीम को ऊपर लेके जाएगा, तो ये देखो पॉजिटिव हो गया। फिर उसके बाद आ जाते हो, ठीक है, लेकिन अब ये यहाँ पर निकालना है, तो ये 2 वाला भी तो है इतना, ये 2 वाला भी तो है यहाँ से यहाँ तक, तो 2 इंटू कितनी डिस्टेंस है 3, लेकिन ये ऊपर से लग रहा है तो नीचे लेके जाएगा, इसलिए -2 इंटू 3। क्लियर? ये तो ये रुको 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 मेरे को बताने दो, कलरफुल। ओके, सो यहाँ से यहाँ तक ये यूडीएल लग रहा है, ये देखो यहाँ से, तो इस यूडीएल को पहले इस डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3, तो ये कन्वर्ट हो गया कहाँ, लोड पे। अब बचा वो लोड, तो ये तुमको पता है कि वो जितने डिस्टेंस में ऐड करता है उसके आधा हो जाता है, ये यहाँ हो गया 6 का किलो न्यूटन का यूडीएल। अब आधा हो जाता है तो 3 का आधा कितना है 1.5, यहाँ से डिस्टेंस, तो ये कहलाता है 2 इंटू 3 इंटू 1.5। तो अब इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये आ जाएगा +14 किलो न्यूटन मीटर। ये यूडीएल की विशेषता होती है, आपको पहले से मैं बोला कि जितने डिस्टेंस में वो रहेगा पहले वो मल्टीप्लाई होगा, फिर उसके हाफ में ऐड करता है। अब उस हाफ से उस पॉइंट की डिस्टेंस निकालनी है जहां पर आपको बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करना है। तो बेंडिंग मोमेंट हमको डी पॉइंट में कैलकुलेट करना है, तो उससे डी की डिस्टेंस, यहाँ पर उसकी डी की डिस्टेंस 1.5 है। क्लियर? चलिए यहाँ पहुंच गया। अब उसके बाद आपको बी पे निकालना है, तो चलिए बी पे आते हैं। अच्छा, बी और ए तो सिमेट्रिक है, कोई दिक्कत नहीं है। 16 सिमेट्रिक है ना, तो डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, ये पहले से ही निकाल लिया। यहाँ एम ए और एम ए बी बोथ आर द सेम, सिमेट्रिक है। यहाँ से जाओगे, देखो ये चूंकि यहाँ पर 5 है, सेम डिस्टेंस है, तो जितना ये होगा उतना ही होगा, दैट क्वाइट ऑब्वियस है, तो इसने पहले कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन ड्रा दी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो सी और ई मतलब इस कॉर्नर पे 0 है, तो देखो जरा आया 0, ये देखो दोनों कॉर्नर पे 0 है। उसके बाद चलो आओ चलते हैं। अब इस ए और बी पे कितना आ रहा था, ए और बी पे -10, तो ये रेफरेंस लाइन है जो व्हाइट वाली दिख रही है सीधे सीधे, यहाँ से जहां पर ए है, यहाँ पर ए है, उससे नीचे -10 इधर आ गया, -10 इधर भी आ गया। अब इन दोनों को जोड़ दो इंक्लाइन लाइन से, जुड़ गया, क्लियर हो गया। इसको भी इंक्लाइन लाइन से जोड़ दो। अब फिर तीसरा पॉइंट है डी। डी पे देखे जरा कितना आ रहा है, डी पे आ रहा है +40। +40 को यहाँ से, ये मेजरमेंट सारे इस लाइन से करनी है, इस वाली रेफरेंस लाइन से, यहाँ से ये पूरा मेजरमेंट की लाइन। तो ये 40 लगभग अंदाज से, मतलब 10 से थोड़ा ज़्यादा 14 होगा, तो ले लो ऐसे। अब इनको मिलाना है 3 पॉइंट्स, किसको किसको, इसको 3 ही थे ना, एक ये था तुमको नोन, एक ये था नोन, और एक ये था नोन, इन तीनों को आपस में मिलाना है। तो आप फ्री हैंड से पैराबोला बना दो, ऐसा वाला फ्री हैंड से, ऐसा पेन से ऐसे फ्री हैंड से तीनों पॉइंट को मिलाते हुए पैराबोला बना दो। तो ये कहलाएगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फॉर गिवन लोड डायग्राम। अब देख लो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर आ गया ना यहाँ, ये देखो, एक तो ये है, एक तो ये है, दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर। पॉइंट ऑफ फ्लेक्सर क्या बोलता है, जहां पास बेंडिंग मोमेंट चेंज इट्स साइन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव और नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो यहाँ देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है, और यहाँ पर देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव हो रहा है, तो दोनों जगह पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर इज देयर, ठीक है। तो दोनों जगह पे आ रहा है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लेक्सर। सो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, बहुत आसान है, आपको बता देता हूँ तो कैसे निकालेंगे, बहुत आसान है, सिंपल। अच्छा ये बताओ, आपको तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पर तो बेंडिंग मोमेंट 0 हो गया ना, इसका मतलब 0 है, क्योंकि मेजरमेंट आप ऐसे ऐसे करते हो, यहाँ जाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, इधर जाओगे निगेटिव हो जाएगा, तो उस लाइन पे तो 0 है। अगर मैं यहाँ की एक नई इक्वेशन बना दूँ, मैं मान लूँ कि यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है x या a, जो भी मानना हो, और इस पॉइंट के लिए, इस नोन पॉइंट्स के लिए, मतलब वो मान लो कि पॉइंट यहाँ है, इस जगह,
चलो आगे देखते हैं। कलर, मेरा कलर, चलो इसके करस्पॉन्डिंग हम चलते हैं ऊपर। आइए इस करस्पॉन्डिंग ऐसे लाइन बना लेंगे, क्या दिक्कत है। और हम आ गए यहाँ इस पॉइंट। मेरे को यहाँ की इक्वेशन चाहिए, बना सकते हैं। और मान लिया कि देखो ये टोटल यहाँ से इस कॉर्नर से ये जो डिस्टेंस है ये x है, अननोन, वही तो पता करना है, वही तो पोजीशन ऑफ द कॉन्ट्राफ्लेक्सर है, उसी को निकालना है। तो जो नहीं पता होता है तो मैथमेटिक्स ने हमको ये सिखाया, उसको x मान लो। तो ये डिस्टेंस x होगी और यहाँ पर बेंडिंग मोमेंट निकालना है इस पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर है यहाँ पर। तो हम निकाल सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन क्या बनेगी, इससे इस लोड की कितनी डिस्टेंस है, देखो जरा कितनी डिस्टेंस इसकी, x माना ना तुमने, ये देखो माना, ठीक है। ठीक है, ये हो गया 5x। यहाँ से ये पीला वाला जो लाइन मैंने खींचा, जो सेक्शन लिया है, 5x हो गया। ये कहाँ लेके जाए, नीचे आ रहा है, आपको पता ही है, ठीक है, पता है ना, तो नीचे लेके जा रहा है तो -5x हो गया। उसके बाद नेक्स्ट लोड कौन सा है, यहाँ वाला जो RA पे लग रहा है, ये मतलब A पे लग रहा है RA, ये वाला, ठीक है। ये रख लेते हैं, इसका वैल्यू कितना था पहले, किसी को याद है, 16 था क्या, 16 था ना, यस सर। ठीक है, यस। कोई इशू नहीं है। चलो अब चलते हैं हम 16, तो ये हो गया बेटा 16 हो गया। अब इसकी डिस्टेंस कितनी है, अब जहां पर लोड और सेक्शन की डिस्टेंस चाहिए होती है ना, ये डिस्टेंस कितनी है, कोई बताएगा, ये वाली, ये डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ, बताओ जरा, x के टर्म में बताना। टोटल है x, ये माइनस कर दो, x -2, आया समझ में। ये चाहिए ना मेरे को, यहाँ टोटल x है, ये वाली माइनस कर दो इसकी, ये 2, ये x -2 हो गया। अब ये किधर लेके जाएगा, ऊपर, इसको प्लस कर दो, हो गया। समझ में आ रहा है ना यार, अगर तो कोई लोड और यस सर। यस। नहीं आ रहा है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ तक पहुँच गए, अब क्लियर हो गया। अब मैं आ गया यहाँ पर, चाहिए मेरे को इससे, तो ये तो बच, ये छोटू, ये 2 किलो न्यूटन वाला भी तो है पर मीटर, इसको भी तो लेना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 2, तो आ गया इसका। और कितने डिस्टेंस में लग रहा है वो, इतनी डिस्टेंस में। ये डिस्टेंस क्या कहलाती है, x -2 है, -2। x -2 है ये, x -2, फिर x -2 का आधा होगा, होगा ना, ये इसका आधा यस सर। लेते हमको, यस। हाँ, तो x -2 है। का स्क्वायर हो जाएगा, और बाय 2, x -2 का आधा, तो x स्क्वायर बाय 2, और ये वाला फोर्स ऊपर से नीचे लग रहा है, ऊपर से नीचे वाला पॉजिटिव होता है। ये इक्वेशन बन गई तुम्हारी, इसको पुट कर दो 0, इसको सॉल्व कर दो, x की वैल्यू जो होगी, दैट इज द पोजीशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर। होप आपको सर स्क्वायर क्यों आया सर? क्या हो गया, स्क्वायर सर, x -2 का स्क्वायर क्यों आया? x -2/2 कर देंगे तो भी हाफ हो जाएगा ना वो तो। यार एक तो फॉर्मूला इसके मल्टीप्लाई लोड में कन्वर्ट होगा, फिर उसका आधा आधा होगा ना, x -2/2, तो ये ऊपर वाला स्क्वायर ना हो जाएगा उससे। यहाँ आ जाओ, लेट्स मूव नेक्स्ट पार्ट। आगे कैलकुलेट किया है, ये देखो, यहाँ आ जाओ। अब इन्होंने ऐसा ले लिया, यहाँ से ले लिया, तो इससे भी कर सकते हो, मेथड तुम्हारा सेम ही आएगा, तुम चाहे कैलकुलेट कर लो, जो मैंने इक्वेशन बनाई उससे भी आएगा, और इस प्रॉब्लम में जो है ऐसा भी कर सकते हैं। ये यहाँ सपोर्ट से ले सकते हो या एंड से ले सकते हो, वैल्यू विल बी सेम। आपको मैं स्लाइड प्रोवाइड कर दूंगा, यू कैन चेक दिस, नो प्रॉब्लम, बोथ मेथड आर सेम। आप चाहे यहाँ से x ले लो, चाहे यहाँ से ले लो, बात वही है। आप वैल्यू रखोगे, यू विल गेट द वैल्यू 0, नो प्रॉब्लम, ठीक है। So this is all about these numericals.
ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली x, हाँ ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 1। सो यहाँ से डिस्टेंस चाहिए थी, जब से x इज इक्वल टू 1 तो यहाँ से आपको ये 2 जोड़ना पड़ेगा, मतलब C से डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फ्लक्सर इज 3, ठीक है, पॉइंट ऑफ सेक्शन 3 मीटर यहाँ से। और अगर इसके हिसाब और अपना जो आएगा जब उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यू विल गेट डायरेक्टली 3, दैट इज इट। So thank you so much for being here. So now you can ask